about prerequisites which you are required before entering the BEE syllabus. So I hope you got the concept and you will differentiate between resistor, resistance, inductor, inductance, capacitor and capacitance. Now I hope you will know about series and parallel connections. Most of the students are thinking that it is a very simple task, but whenever you involve with this, it will make it difficult to you that either it is series connection or it is a parallel connection. So most of the students are thinking that if resistance are connected like this, R1, R2, R3, these are connected in series, and if they are connected like R1, R2, R3 in this pattern, these are connected in parallel. And you also know the definition. If current is dividing, that means they are connected in parallel. If current is not dividing, that means these resistance either connection is in series or in parallel. No, it is not possible to find either connections in series and parallel if current is dividing. So ये definition तो आपका fail हो जाएगा. With the definition you cannot able to get. Why? Because if I am going to ask one question to you students, suppose the resistance are connected like this. One resistance is going like this. Like this. If I ask, tell me this is R1, R2, R3, R4 and R5 resistances are there. If I ask resistance R1 and R2, both are connected in either series, parallel or none of these. So who will tell me either R1 and R2 are connected in series, parallel or none of these? Tell me, R1 and R2, either these are connected in series or parallel? Yeah. सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? Sir, your content is not visible. सर आपका स्क्रीन फिक्स हो गया वहीं पे. सर डिटेल्स कंटेंट पे फिक्स हो गया आपका स्क्रीन. One second. File is not visible to you. 1 second. किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर. 1 second. No, sir. No, sir. But it is presenting. Why it is not visible to you? I don't know. सर आप जो सिखाते हो मतलब जल्दी समझता नहीं है सर. अभी स्टार्ट तो होने तो बीच में ब्रेक ही हो जा रहा है तो समझेगा क्या? सर एक नहीं बार सर रिफ्रेश करिए आप. सर पिछले लेक्चर जो सिखाया था ना सर वो मतलब समझ में नहीं आ रहा था सर. आपने मैंने वीडियो सेंड किया देखा क्या? हाँ सर. यस सर. नहीं समझा? नहीं समझा सर. उसमें मैंने क्या सिखाया था? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस. वो नहीं समझा आपको? समझा सर. अगर आपको रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर नहीं समझा तो आप BEE कैसे समझोगे? पहले आप ये सोच लो, क्योंकि मैंने तो कुछ सिखाया ही नहीं लास्ट लेक्चर में. I just explain what is resistor, inductor and capacitor and what are the units, how you can find resistance, capacitance and inductance by this. अगर XL equal to 2 pi F into L नहीं आता आपको, XC equal to 1/2 pi F into C नहीं आता आपको, तो आपको मैं क्या सिखाऊंगा? Think your own self before asking the questions, dear. The blaming is very easy. I know problem is there. पर अगर आप कह रहे हो क्या आपने सिखाया वो समझ में नहीं आ रहा, तो पहले आप ये सोचो कि आपको सीखना क्या है और समझना क्या है. स्टूडेंट टेल मी, ये आपको पीपीटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा?
सर वही स्क्रीन It is visible, sir. सर दिख वही रहा है। डिटेल कंटेंट दिख ओके वन सेकंड, मैं अगर लिख रहा हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा क्या? टेल मी। रहा है। नो सर No, sir. No, No, sir. sir. नो सर No, sir. Okay, one second. Some problems are there. I don't know. One second. Wait a second. अब बताइएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? टेल मी, जो लिख रहा हूँ मैं। यस सर दिख रहा है, sir. दिख रहा है, दिख रहा है, sir. Yeah, Dash yeah. test किया है, sir. दिख रहा है. Okay, yeah, okay, thank you. Okay, okay, in this lecture हम लोग क्या सीख रहे हैं? About series and parallel connections. Okay, so in generally we know if resistances are connected like this, these are connected in series. If resistance are connected like this, we are knowing that these resistance are connected in parallel. R1, R2, R3 are connected in parallel. R1, R2, R3 are connected in series. And one more definition is there. If current is dividing, 12th में आपने सीखा होगा, if current is dividing, that means connections are in parallel. If current is not dividing, that means resistances are connected in series. सीखा है आपने ये definition? So in this case, suppose current is coming, I current is coming, the same current will flow with this R2 resistance, and the same current will flow through this R3 resistance. But if we are talking about here in this case, if current I is coming from this particular circuit, so this current will divide. Some amount of current will flow through this R1 resistance, some amount of current will flow through this R2 resistance, and some amount of current will flow through R3 resistance. So ये current क्या हो गया? Divide हो गया. So जो 12th में आपने सीखा था, if current is dividing, that means network is connected in parallel. Network कैसा connected है? Parallel में connected है. If in this case current I is going for this particular R2 and the same current is flowing through this particular resistance of R3, तो I तीनों में गया. That means current is not dividing. That means this network is connected in series. ये आपने सीखा था. But here with this definition, you are not able to get the concepts. And you are not able to get the exact location. Either they are connected in series or parallel. How? I will give an example to you. Suppose your resistances are connected like this. Okay, suppose here you are having one voltage source. Here you are having resistance R1, R2, R3, R4, R5 and R6. If I am asking, tell me either R1 and R3 are connected in. So series में connected है, parallel में connected है, या neither series nor parallel? Tell me. Neither series nor parallel. Yeah, neither series. Yes, okay. Can you tell me why it is neither series and not parallel? Tell me R1 R4 कैसे connected है? R1 and R4. Tell me. Series. Yeah. Very good. Series में. और भी कोई स्टूडेंट्स है जो इसको means can tell that no either this is not in series. कोई बोल सकता है कि R1 and R4 सीरीज में नहीं है? कोई ऐसा बोल सकता है क्या? No sir. That means according to you, R1 and R4 are connected in series. Everyone. सभी के लिए R1 and R4 are connected in series. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, very
यस, किसने नो बोला? टेल मी। या वन सेकंड। सर आई थिंक जो R4 और R3 जहाँ इंटरकनेक्टेड है ना, वहां पे करंट डिवाइड होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स आई एम आस्किंग। देखो कॉन्सेप्ट सीखना है। आप सभी ने बोला कि सीरीज में, वही मैंने बोला कि आपको बोल रहे हो ना कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स योर ओपिनियन, बट फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट माय लेक्चर, देन ओनली यू हैव टू टेल व्हाटएवर कमेंट यू वांट टू डू, टेल, नो प्रॉब्लम। लुक, R1 and R4, it is not connected in series. Why it is not connected in series? If you are having any junction in between of any two resistances and any third branch is coming from that particular junction, that means both two are not connected in series. ये कॉन्सेप्ट याद रखना स्टूडेंट्स। दो रेजिस्टेंस, देखो डिफिनीशन जो आपने डिफिनीशन सीखा दैट्स ओके, बट जो मैं डिफिनीशन सिखा रहा हूं वो सीखिएगा। If two resistances, suppose one resistance is there, another resistance is there. If you are having two resistances and both are connected one by one, if you are having two resistances like this, one resistance and another resistance, and if you have a junction, suppose two resistances are connected one by one, and in between of two resistances you are having a junction. If with this junction, if one another branch is coming out, if with the junction another branch is coming out, that means both two resistances are not connected in series. Dear students, you have to know this point. एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा कनेक्टेड है, दोनों सीरीज में होंगे until and unless third branch is not coming out from that particular junction. Got it, students? Sir, Repeat it one more time. Yes. Yes, sir. Yes, I'm repeating. Suppose एक रेजिस्टेंस ये है आपके पास R1, दूसरा रेजिस्टेंस ये है R2। एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा कनेक्टेड है, both are connected one by one, and in between of two resistances if there is a junction, सिर्फ जंक्शन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, both are connected in series. But if in between of two junction one another branch is coming out, if in between of two junctions one another branch is coming out which is connected somewhere else in the circuit, वो कहीं और सर्किट में कनेक्टेड है, so R1 and R2 are not in series. ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. दो रेजिस्टेंस, ओके, दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे। कब तक? जब तक उनके बीच के जंक्शन से तीसरा कनेक्शन नहीं जाएगा, तब तक सीरीज में है। इफ अनदर कनेक्शन इज गोइंग, दैट मींस यू कैन नॉट से दैट इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, यस। व्हाट अबाउट पैरेलल सर्किट्स? सपोज आपके पास टू रेजिस्टेंसेज हैं, लाइक एक ये आपके पास R1 है और दूसरा आपके पास R2 है। If two resistances are connected in parallel, that means one end of this resistance is connected with the another end of another resistance. Means एक resistance का एक end दूसरे resistance के दूसरे end के साथ अगर connected है, and another terminal of first resistance is connected with the another terminal of second resistance, that means you can say that both resistances are connected in parallel. करंट डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस है और दोनों के एंड आपस में मिलेंगे तभी वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ R1 and R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने जो बोला था, किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर R1 R4 सीरीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, because current is dividing. So dear students, can you tell me if current is dividing, that means R1 and R4 are connected in parallel? Yes. क्या? Yes, very good. One second, wait, yeah. According to you, R1 and R4 are connected in parallel? No sir. Yes. किसी ने बोला no, R1 and R4 are not connected in parallel because you don't know the concepts dear, तभी आपको प्रॉब्लम होता है।
R1 R2 सीरीज में कब होगा? आपने बोला दो रेजिस्टेंस लगे, बट यू हैव टू सी कि बीच में टर्मिनल था। लाइकवाइज R1 and R4 are not connected in parallel. Why? Definition सुनो, definition मैंने क्या बोला? Then two resistances R1 and R2 are in parallel when both ends are connecting with each other. जब दोनों टर्मिनल के एंड एक दूसरे के साथ मिलेंगे। यहां पर देखिए डियर, R1 यहां पर है, R4 यहां पर है, R1 and R4 का एक टर्मिनल यहां पर मिल रहा है, बट व्हाट अबाउट अनदर टर्मिनल? What about another terminal dear? R4 का another terminal R6 के साथ मिल रहा है और R1 का another terminal this voltage source के साथ मिल रहा है। That means R1 and R4 are not connected in parallel or not connected in series. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Can you repeat, sir? Yeah, I will repeat. Listen. R1 and R4 सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में टर्मिनल है। ओके, अब R1 and R4 पैरेलल में भी नहीं है। क्यों नहीं है पैरेलल में? क्योंकि पैरेलल होने के लिए R1 and R4 के दोनों टर्मिनल आपस में ज्वाइंट होने चाहिए। तो हमने देखा कि R1 का एक टर्मिनल यहां पर है और R4 का एक टर्मिनल यहां पर है, यानी R1 और R4 का एक टर्मिनल तो ज्वाइंट हो रहा है। बट व्हाट अबाउट अनदर टर्मिनल? दूसरा टर्मिनल कहां पर है? देखिए, दूसरा टर्मिनल R4 का R6 के साथ है एंड R1 का वोल्टेज सोर्स के साथ है। दूसरा टर्मिनल जब तक आपस में ज्वाइंट नहीं होगा, सो यू कैन नॉट से दैट R1 एंड R4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर हुआ? R1, Yes, sir. Yes, sir. R1 R4 ओके। R1 एंड R4 के लिए अगर दो रेजिस्टेंस है, सो दोनों के टर्मिनल आपस में ज्वाइंट होने चाहिए। नाउ सो अगर आप बोलेंगे सर ये तो सीरीज कनेक्शन भी नहीं है एंड ये पैरेलल कनेक्शन भी नहीं है, सो किस टाइप का कनेक्शन है? सो फॉर दैट वी विल डिस्कस व्हेनेवर वी गो अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टार एंड डेल्टा। So this connection may be in star or maybe in delta. We will discuss about star and delta in upcoming lectures. So I hope you got the concept about series and parallel. So series parallel नहीं भी आया तो आप प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, because BEE आपको मालूम है बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है। Now connections of resistances, तो आप देख सकते हैं सीरीज में कैसे कनेक्शन होगा और पैरेलल में कैसे कनेक्शन। Now concepts of voltage, so आपको ये सब पढ़े से पढ़ के आना है। So I hope you will go through with these all topics and you will know very well कि voltage का यूनिट क्या होगा V, करंट का क्या होगा I means it is representation of I and unit is ampere। इसका क्या है V, क्या बोलते हैं वोल्ट। वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है। करंट को I से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है। पावर को P से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होता है इसका वॉट। यूनिट क्या होता है वॉट। एनर्जी एक तरह का पावर ही है बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, सो दैट एनर्जी वाट पर सेकेंड आप कह सकते हैं। नाउ वर्किंग ऑफ वॉट मीटर। सो लिसन, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं अब बिकॉज ये जरूरत नहीं है, बट आपको आना चाहिए। व्हेनेवर वी विल डिस्कस अबाउट मॉड्यूल नंबर 3 फेज सर्किट, दैट टाइम यू हैव टू नो अबाउट वॉट मीटर। ओके, सो वॉट मीटर का काम क्या है? कैन यू टेल मी? हु विल टेल मी अबाउट वॉट मीटर? टेल मी। वॉट मीटर वोल्टेज को फाइंड करने के लिए पावर फाइंड कर। यस। देखिए वोल्टेज अभी मैंने बताया कि वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, यानी अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है सो यू हैव टू यूज वोल्ट मीटर। वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे? यस, वोल्टेज के लिए हम करेंगे वोल्ट मीटर। करंट मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एमीटर यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर हम लोग यूज करते थे प्रीवियस ओल्ड वन में, जो पहले हम लोग यूज करते थे बैलेंसिंग करने के लिए, जैसे ब्रिज बैलेंस करना होता था
So on that particular time, we used galvanometer, that is a DC circuit, and we are using PMMC, permanent magnetic coils, for making that galvanometer. But these ammeters, nowadays we are using ammeter for measurement of current. That is a new technology. Okay, so now what time we are using only ammeter, not a galvanometer. Okay, for power measurement we are using wattmeter. Okay, we are using wattmeter for measurement of power. Got it, everyone? This now what is the wattmeter? So wattmeter is a device which measure our power. Okay, but इसका सर्किट डायग्राम अगर आप देखेंगे, सो जब लेबोरेटरी में आएंगे, सो आई विल शो यू wattmeter सर्किट डायग्राम. बट इनिशियली इफ यू वांट, सो इट लाइक दिस. This is a wattmeter internal circuit diagram. This is called CC. This is called PC. CC means it is called current coil, and the PC is called potential coil. Okay, these four terminals are there. This is called M, L, this is called C, and this is called V. So we are having four terminals, M, L, C, V. In between of M and L, we are having one coil that is called CC, current coils. In between of M and V, we are having one coil that is called PC, potential coil. Now, why we are required two coils in case of wattmeter? Because wattmeter is a power measurement device, and power is the product of voltage and current. So we need two coils, one coil for measurement of voltage and another coil is measurement for current. So measurement of voltage is done by this potential coil, and current measurement is done by this current coil. That's why we are using two coil for measurement of our power. Okay, here we are having very less number of turn in case of current coil, less number of turn. You can say PC coil is thick coils. Yes, potential coil is a thick coil, थोड़ा मोटा होता है, मोटे coils का. You are not audible, sir. Yes, So sir. okay, so I hope you got the concept about wattmeter. हेलो सर. Yeah, tell me. Yes. सर आपने बोला कि दोनों कॉइल में डिफरेंस होता है, करंट Yes, और yes. वोल्टेज. तो सर Yes. वो डिफरेंस होता क्यों है, मतलब सेम क्यों नहीं ले सकते? Okay, I will tell you. Yeah, actually a deep concept. That's why I thought I will explain in module number 3. No problem, I will explain right now. Okay, listen. This is your wattmeter connections over there. Here we are having two coil, CC and PC. CC means current coil, PC means potential coil. Always CC coil that is made by a thick, I think, a thick material, and this PC coil for a thin material. Why we are using thick and thin, and why we are using less number of turn, and why we are using large number of turn? Okay, listen. I think you know about this. In last lecture I explained about rho L by A. Please mute yourself. You know R equal to rho L by A. If I सर आपने उल्टा लिख दिया लगता है. No, it's सही लिखा है. Thick thin sir, thick thin. Thick is the PC now, and thin is the CC. No, I think मैंने अगर पहले लिखा होगा तो wrong लिखा होगा. This is thick, CC. Listen, R equal to rho L by A. ये definition सभी को मालूम है. Suppose in this case, if I increase the cross-sectional area, what will happen? This resistance value will reduce. Agree. Okay, so in this case, if I using a thick coil, that means its resistance value is low.
And another thing, less number of turns. Less number of turns means again R जो रेजिस्टेंस है आपका वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। ये कहां से आता है, ये हम लोग सीखेंगे जब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिस्टेंस सीखते हैं। आपने आई थिंक सीखा होगा, 11th में टॉपिक है when you will go with the electricity. So resistance is directly proportional to the number of turns. Agar in this particular case if you are having a less number of turns, that means resistance will low. So दोनों कंडीशंस थिक बनाना और लेस नंबर ऑफ टर्न करने का काम क्या है कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। That's why always resistance value in case of current coil is very very less. And what about potential coil? This resistance will very very high. भाई थिन है यानी पतला है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होगा, सो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि करंट कॉइल को ऐसा क्यों करते हैं और पोटेंशियल कॉइल को ऐसा क्यों। ओके, हमें करंट कॉइल से मेजर क्या करना है, करंट कॉइल विल मेजर योर करंट वैल्यू और पोटेंशियल कॉइल क्या करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। सो इफ करंट कॉइल इज मेजरिंग अ करंट, सो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाई? देखिए आप देख रहे हैं ये सीसी जो है सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे? अगर ये हमारे पास कोई भी टर्मिनल है जहां पर हमें पावर मेजर करना है, सपोज ये टर्मिनल है, सो सीसी कैसा है, सीरीज में है इसके साथ, और पीसी कैसा है, पैरेलल में है। तो सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट मेजर किससे करते हैं, ए मीटर से मेजर करते हैं। ए मीटर का सर्किट डायग्राम क्या होता है, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स? इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, लुक, this is your ammeter, this is internal resistance of ammeter, ये this is a circuit diagram of ammeter। अगर आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज नोट इट डाउन, ammeter, this is a circuit diagram of ammeter। look here we are having the resistance value, और ये resistance value कैसा होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? अगर मैंने resistance value को ज्यादा कर दिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा पॉइंट, नहीं आ रहा? करंट फ्लो हो जाएगा। यस, देखिए इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सर्किट कहां पर कंप्लीट है, सपोज यहां पर कनेक्टेड है, सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। यस, यहां करंट जा रहा है तो करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा ना। ओके, सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा? यस होगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस, यस, अगर यहाँ पर ओके, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे क्या कि आपका वोल्टेज ड्रॉप सर्किट में ज्यादा हो जाए? नो, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। हम क्या चाहते हैं कि सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉज वी आर पुटिंग करंट कॉइल विद लो रेजिस्टेंस, and for making low resistance coil we have to make less number of turn with a thick conductor। conductor means wire, कंडक्टर बोला जाता है। तो अगर मोटे वायर के कम नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए करंट कॉइल पे हम लोग क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ओके, नाउ if I want to draw the circuit diagram for this voltage, voltmeter, so how you will get like this। This is your voltmeter। अभी जो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे ना, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट वोल्ट मीटर एंड ए मीटर। इसके जस्ट बाद मैं बोलूंगा वोल्टेज एंड करंट, दोनों चेंज हो जाएगा, बोथ आर डायरेक्टली अपोजिट, दोनों अपोजिट होता है। तो केयरफुली सुनिएगा, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अमीटर एंड वोल्ट मीटर, नॉट अ टॉकिंग अबाउट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। डियर स्टूडेंट्स केयरफुली सुनिएगा, यहां पर ये हम एमीटर की बात कर रहे हैं,
करंट के साथ सीरीज में लगा है रेजिस्टेंस। यहां वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, वोल्टेज के साथ पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टेंस। ओके, अगर ये वोल्टेज लगा है तो क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। सो अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने छोटा कर दिया, क्या हो गया, स्मॉल कर दिया, और ये सर्किट के साथ कनेक्टेड था। अगर हमने इस रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल कर दिया तो क्या होगा, जो भी करंट यहां से आ रहा है सारा का सारा करंट कहां से फ्लो हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस से फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये स्टूडेंट्स? Okay, so I miss actually. तो दिस इज वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस था आपके पास। हाँ, अगर यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रहा था और ये सर्किट के साथ कंप्लीट था, अगर मैंने इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कर दिया तो क्या होगा, सारा का सारा करंट इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो जाएगा। पर हमें करंट कहां लेके जाना है, करंट तो यहां जाना है ना सर्किट में। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। हाँ सर। We don't want that our current will flow from internal resistance. हम नहीं चाहते कि जो हमारा करंट है वो सर्किट के अंदर से जाए, अपने डिवाइस के अंदर से जाए। हम क्या चाहते हैं कि जो भी करंट है वो जहां पर कनेक्ट किया गया है वहां पर फ्लो हो। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही ज्यादा कर देते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा सो करंट का फिनोमेना होता है, करंट विल फ्लो वेयर रेजिस्टेंस वैल्यू इज लो। वो वहीं से फ्लो होता है जहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। सो अगर एज कंपेयर टू द सर्किट हम इस रेजिस्टेंस को इतना ज्यादा कर दें कि करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो ही ना हो, दैट इज अवर टास्क। दैट्स व्हाई करंट कॉइल पे जो रेजिस्टेंस है वेरी वेरी लो एंड पोटेंशियल कॉइल पे जो भी रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी हाई। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यस सर। यस सर। यस, वोल्ट मीटर का ये सर्किट डायग्राम है। अगर आपको है प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्ट मीटर, नॉट अ वोल्टेज। ओके, दिस इज अ वोल्ट मीटर। केयरफुली इसको नोट कर लेंगे। और दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ ए मीटर। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दिस इज अ मीटर। ओके, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं एक और चीज इसमें बताता हूं। लिसन केयरफुली। Another question will arise from here, where internal resistance is connected in case of voltage source and in case of current source. पहला क्वेश्चन सुनिएगा केयरफुली, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। Where internal resistance is connected in case of voltage source and in case of current source. पहला क्वेश्चन मैं लिख के बताता हूं, अभी कंफ्यूज जाएंगे। Where internal resistance are connected in case of voltage source and current source. Second question, where internal resistance are connected in case of voltmeter and ammeter. ठीक है, दोनों अपोजिट क्वेश्चंस हैं, इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। हमें पहले सेकंड का आंसर देना है। वेयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन केस ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो देखिए ये वोल्टमीटर है ना, दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर वोल्टमीटर। ये सर्किट डायग्राम किसका है? वोल्टमीटर का है। सो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? देखिए दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इसके साथ देखिए दोनों टर्मिनल यहां पर मिल रहा है इसका, और इन दोनों का भी टर्मिनल यहां पर मिल रहा है। तो कैसे कनेक्टेड है आपस में? पैरेलल। वेरी गुड। सो इंटरनल रेजिस्टेंस
is always connected in parallel in case of voltmeter and in series with the ammeter. एक इसका आंसर मिल गया, या इसका आंसर मिल गया कि वोल्ट मीटर का जो है वो कहां होगा, पैरेलल में होगा। वोल्ट मीटर का कहां पर होगा, पैरेलल में होगा, एंड एमीटर का कहां पर होगा, सीरीज। गुड, ये क्वेश्चन। अब हमें दूसरे का भी आंसर चाहिए कि वेयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। So before giving the answer of this voltage source and current source, we have to know what is the circuit diagram of voltage source and what is the circuit diagram of current source. So now I am explaining of sources, either voltage source or current source. Okay, so now here I am representing a voltage source, so listen carefully. Voltage source is always denoted with this terminal. I already explained, one terminal is small, one terminal is large. A small terminal is always represented with the minus and large terminal is always represented with the plus. And the resistance which is connected over there, and this is called internal resistance. So this is called circuit diagram for voltage source. Okay, so this is called voltage source, and likewise you can draw current source. करंट सोर्स में ऑलवेज ये एरो बना होगा और वोल्टेज सोर्स में स्मॉल टर्मिनल एंड लार्ज टर्मिनल बना होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड current source and internal resistance is connected in the parallel, so this is called current source. Students, I hope this point is clear to you. So please draw voltage source and current source. सबको आंसर मिल गया इसका फर्स्ट का? Yes, so internal resistance in case of voltage source is always connected in series, and in case of current source internal resistance is always connected in parallel. Got it, students? Okay, yes, so okay, so next I am moving for our content. Actually, okay, so your module number 1, actually मैंने सेव कर दिया, so ये पॉसिबल नहीं है इसको इरेज करना. So look, this is your module number 1. In case of module number 1, we are going to study about DC circuit only. So DC circuit में हमें क्या क्या सीखना है? Only independent sources. Okay, क्या क्या सीखना? Only independent sources. Dependent में क्या क्या है? डिफरेंस क्या है इस दोनों में? DC सर्किट्स में हमें सीखना है only independent sources. So sources की अगर हम बात करते हैं, so we are having two type of sources. Current source and voltage source. Current source की अगर बात करते हैं तो ये भी दो तरह के होते हैं, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स. अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज में दो होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. ओके, सो सोर्सेस में दो तरह के, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट, प्रैक्टिकल करंट, आइडियल वोल्टेज एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. ये सोर्सेस की बात है. अब इसमें दो तरह के आते हैं सोर्सेस में, ये डिपेंडेंट आते हैं या इंडिपेंडेंट आते हैं. सो ये चारों को फिर से क्लासिफाई हो जाएगा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. सो डिपेंडेंट क्या होता है? देखिए, डिपेंडेंट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं. कैसे कैसे देखिएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स,
current control voltage source and current control current source. It is visual to you, students? Yes, sir. Yes, sir. So डिपेंडेंट 4 टाइप्स के हैं. देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है. आप एक को लिख लीजिए, फिर आप लिख सकते हैं. VCVS का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. VCIS का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स. ICVS का मतलब क्या हुआ? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. एंड ICIS का मतलब क्या हुआ? करंट कंट्रोल करंट सोर्स. Got it, students? So these 4 are dependent sources. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हमें मालूम होना चाहिए कि डिपेंडेंट सोर्सेस कौन कौन से होते हैं. And if we are talking about independent sources, so these sources are independent sources. जो भी मैंने explain किया, voltage, current, ideal voltage, practical voltage, ideal current and practical current, जो भी 4 हैं आपके पास, so all are dependent, independent sources. Got it, students? I hope this point is clear to you. Okay, so yes. And और क्या सीखना है? Because time हो रहा है अभी आपके नेक्स्ट लेक्चर का. और क्या हमें सीखना है इसमें? देखिए, आइडियल वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सीखना है. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मींस जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 सोर्स हैं आपके पास, वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है. सो हाउ यू कैन कन्वर्ट योर वोल्टेज सोर्स टू द करंट सोर्स एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट योर करंट सोर्स टू द वोल्टेज सोर्स. ये हमें सीखना है कि करंट को वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट कर देंगे और वोल्टेज को करंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. दिस वी हैव टू सी. और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपके एग्जाम में 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर पूछा जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, नाउ okay, so okay, so yeah, okay, don't talk, yeah, listen. So about Kirchhoff's law, so we have 2 law, one KVL and one KCL. ये सभी ने पढ़ा होगा, Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. हाँ, so ये आपको रिवीजन करके आना है नेक्स्ट लेक्चर पे. आपको मालूम होना चाहिए what is KVL and KCL. I will explain here also, but you have to know before starting the lecture. So that will be easy to you, because if you concept about Kirchhoff's law, I'm telling you, no one can you fail. कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता इस एग्जाम में अगर आपको Kirchhoff's law समझ में आ गया. अब आप बोल रहे होंगे इतना इंपॉर्टेंट कैसे है? आप जब सीखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा. Kirchhoff's law is the most important for this basic electrical engineering. If you are not able to apply Kirchhoff's law properly, no can pass you. आप समझ लीजिएगा कि कोई भी पास नहीं कर सकता अगर आपको ये प्रॉपर लगाना नहीं आता, यूज करना नहीं आता Kirchhoff's law. That's why आप एक बार डिवीजन करके आइएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए. Why I am forcing you? Because from last 5 years I am here for BEE. Maximum result was 50% for BEE. Got it? मैक्सिमम रिजल्ट है 50%. इससे ऊपर कभी BEE का रिजल्ट गया ही नहीं, because students are not able to get the proper concepts. Is it audible, students? Yes, sir. Okay, yeah, last 1 minute. Yeah, star delta and delta star, जो मैंने आपको बताया कि if connections is not in series, not in parallel, so अगर neither in series nor in parallel है तो क्या करेंगे? So आपको चेक करना पड़ेगा either it is connected in star or delta. तो यहां पर हमें सीखना है हाउ वी कैन कन्वर्ट स्टार टू द डेल्टा एंड डेल्टा टू द स्टार. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? हमें ये जरूरत क्यों है कन्वर्ट करने की? बिकॉज समटाइम द सर्किट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट इजीली सॉल्वेबल. आसानी से सॉल्व ही नहीं कर सकते. सो यू हैव टू अप्लाई स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा 3 and 4 times, then you will get a reduced circuit and solve that particular problem. So कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा कि आप नॉर्मली सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. सो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार. दैट ओके. देन मेश एंड नोडल एनालिसिस. मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस पे कोई डिफरेंस नहीं है. दैट इज ओनली अ KVL एंड KCL.
कहां पर अप्लाई करना है सिर्फ वो देखना है। मेश के लिए क्लोज पाथ चाहिए और नोडल एनालिसिस के लिए एक जंक्शन चाहिए। All four theorems: superposition, Thevenin, Norton, and maximum power theorems. So these are 4 theorems which we will discuss in module number 1. Thank you so much for the lecture. In next lecture, I will explain ideal and practical voltage source transformation. Okay, so आपको क्या पढ़ के आना है? KVL और KCL पढ़ के आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस, इट मे बी वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, एंड वी विल डिस्कस अबाउट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, करंट सोर्स एंड करंट सोर्स टू द वोल्टेज सोर्स। थैंक यू सो मच।